Hello students, welcome to Career Defense School. आज हम सैनिक स्कूल 2021 के एंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स का जो है फॉर क्लास 6 उसको डिस्कस कर रहे हैं. So the first question here is simplify 7 plus 5 minus 2 into 7 plus 89. बोर्ड मास के थ्रू वी नो दिस मच कि पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में जब हम 7 ऐड कर देंगे दिस विल बिकम 96. उसके बाद यहाँ पे एक और ब्रैकेट वी हैव एंड ब्रैकेट के अंदर भी फर्स्ट वील सॉल्व दिस डिवीजन, उसके बाद दिस multiplication 9 into 2 minus 7. So when this we will solve that, this will become 11 and 18, 11 plus 18, and this 7 has to be subtracted. So when we'll add this 11 here, it will become 29 minus 7 will result into 22. Now what we have to do here is we'll write it again, 7 plus 5 minus 2 into this bracket, that is 96, minus 94 divided by 2 plus this bracket which has resulted to 22 as your answer is divided by 11. When we'll solve this, now we'll have the answer as this. So when we'll further solve this multiplication, this will become 7 plus 5 minus, when it is multiplied by 2, this becomes 2, 1, 18, 19, 192 minus 47 plus 2. So now first we'll do the addition part, which is plus 7 plus 5 is plus 12 and plus 2 is plus 14. Plus 14. Now minus 192 and minus 47 will result into 239 as the answer, 239. Now when we'll subtract this 14 from this will become 225, but here it will be minus. Reason being, साइन हम ग्रेटर नंबर का लगाते हैं तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर ही है. 2 to 5 is option number B. तो option number B is our answer. The average weight of, second question is, the average weight of 20 boys in a class is this. हमें पता है the formula of average is sum upon number is equal to average. फाइन. सम हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 20 बॉयज का है और एवरेज जो गिवन है वो 160 है. तो सम फाइंड कर लेंगे, 20 उधर चला जाएगा, 20 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 20 and 32. दिस इज द सम एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इज 50 kgs. तो अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम. नंबर में आ जाएगा हमारे पास 5 और एवरेज पे हमारे पास आ जाएगा 50, तो हमारे पास जो सम है वो आ जाएगा 250. अब हमें निकालना है एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज. तो ऑल द बॉयज विल बी 20 बॉयज प्लस 5 बॉयज गिवन हेयर, 25 हो गए टोटल बॉयज और हमारे पास सम आ चुका है ये वाले 5 बॉयज का और ये वाले 20 बॉयज का. जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3450. अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा आंसर होगा, जो हमें एवरेज निकालना है. यहाँ पे एवरेज किसका है, ऑफ 25 बॉयज. 25 बॉयज कौन से हैं, जो पूरी की पूरी क्लास गिवन है हमें. तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 138 is option number A. It is our answer. Next again is the question given of average. Average marks obtained by 7 students in a group. 7 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हमें गिवन है 2 to 6. अभी हमें और क्या चीज गिवन है इसके अंदर, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, 7 बच्चों के थे, अब वो कह रहे हैं 6 बच्चों के मार्क्स गिवन है, वो ये हैं. अब हमें बताना है जो 7वें बच्चा उसका मार्क्स कैसे होगा. पहले हम यहाँ से सबका सम निकाल देंगे. हम क्या करेंगे, 2 to 6 into 7. 2 to 6 into 7 will result into 2 to 4. This will become 1582. 1582 is the sum obtained by all the marks obtained by all the 7 students, and here we are given the addition of 6 students, which is 340 plus 180 plus 260 plus 56, 275, 307. Now when we'll add these, we'll receive 340 plus 180 plus 260 plus 56 plus 275 plus 307. This will result into 1418, and this is the sum of
6 students and this is the sum of 7 students. Now when we subtract this 1418 from 1582, what we'll receive as our answer will be 164 एंड ये क्या है, ये 7 स्टूडेंट का क्या है हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का जिसके अंदर हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। वी नो 8 + 4 = 12 - 2 = 10 इनटू, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी नो 17 - 12 = 5 इनटू 10 - 90। तो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो 10 और 10 के 2 0 आ जाएंगे एंड 5 × 1 × 1 is 5। 500 - 90 will result into 4, oh sorry, it is -89 here. So from here we received 10 as our answer, from here we received 5 as an answer, and now this has been written. So when we solve this, this will become 500 - 89. 500 - 89 will result into 411 as the answer, which is option number B. Next question is again of simplification and here it is 0.05 plus 1.5 into 1.5 into 5. So we know what we have to do here is we have to first form it in this space. Now we have to solve it. Now what we'll do is here it will become 1.5 when divided by 2 into 5/10. This will become, because we are, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से decimal हटा रहे हैं. This will become 1/20. This will become 1/2. So now we'll take 20 as our denominator and here it will become 1 plus 1. This is of addition and this is of multiplication. So first we'll solve this. This will become 1.5 into 1 will result into 1.5 upon 2 2s are 4. So we have taken the LCM of 1/20 and 1.4 upon 4 after solving this, and now 20 is the LCM taken. Here it will become 557.5. 8.5 upon 20 will be our answer, but here we are given it in different form, so we'll solve it. Then this decimal will get out, this will become this, and now it will be 1 7 here 2. Now this will become 17 upon 40. When we'll solve this further, the resultant will be 417 when divided by 40, it will become 425. 0.425 will be our answer, which is option number C. Next is we have to find the average of all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the total number here is 7. Now we have to find the sum. 1 plus 3 is 4 plus 5 is 1 plus 3 is 4. 4 plus 5 is 9. 9 plus 7 is 16. 16 plus 9 is 25. 25 plus 11 is 30. 6 plus 13 is 49. So we know 7 sevens are 49. Option number A is the right answer. Question number 7th given to us is if x% of y is 100, if y% of z is 200, then find the relationship between x and z. Now how we'll solve this? X upon y will result to this and y into z will result into. Now when we'll solve this, this y will be get cancelled out, this 4 zeros will get cancelled out here. Now we'll be left with x upon y will be 1 upon 2. So this will further reduce to 2x which is equal to 1z. 2x will be equal to 1z. Yes, option number C.
Eighth question given to us is 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number be it x. This number we are taking as x is 15. So first we have to find then 40% of that number, means 40% of x will be what? So first we will solve this question. This will become 630. X is equal to 15. So we'll get the value of x as 15 into 30. But further we have to find the 40% of it. So we'll find it this way. So the answer will be 15 into 3 into 4. It will result into 180. Option number C is your right answer. Next question number 9 given to us is a library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors in a month of 30 days starting from Sunday. So if a month is starting from Sunday, then 1 will be Sunday, 7 will be Sunday, 14 will be Sunday, 21 will be Sunday and 28 will be Sunday. Why? Because अगर 1 तारीख को मंथ के स्टार्टिंग में संडे है तो हर 7वें दिन फिर से संडे आएगा, तो इस तरीके से हमारे पास हो गए 5 संडे और हमें पता है मंथ 30 दिनों वाला कंसिडर करना है, तो बाकी के हो गए 25 दिन अदर डेज और 5 हमारे पास हो गए संडे। अभी हमें जो फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है कि एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स की जो हमें एवरेज है संडे को, और लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510, ये एवरेज है हमारे पास संडे की। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है 240 है जो एवरेज है वो अदर डेज की। अदर डेज हमारे पास कितने हैं 25, संडे हमारे पास कितने हैं 5। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 2550 और जब हम इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6000। अब ये हो गया अदर डेज के सम, ये हो गया हमारे पास संडे का सम। इनको टोटल कर देंगे 8550 और टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास है 30। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 285 इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन 17th मैच एंड thus increases the average by 3। मतलब पहले जो 16 उसके मैच हो चुके हैं उसके अंदर उसकी एवरेज कितनी रही है x। उसके बाद उसने 17वां एक और खेला, मतलब 16x क्या था, एक हो गया, ये 16 तक की एवरेज। उसके बाद एक और उसने खेला 17th वाला है, पर हम उसको एक ही मानेंगे ना क्योंकि पहले वाला कितना है हमें नहीं पता। तो उसकी जो एवरेज थी उसने इतने 87 करा। अब क्या है, अगर हमें ये हो गई 16 तक की, 1 से 16 तक, ये हो गया सिर्फ 17 तक, पर हमें बताना है उसकी एवरेज आफ्टर 17th मैच, मतलब हमें 1 से लेके 17 वाले मैच की एवरेज बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 मैच का हमें सम निकालना पड़ेगा। इसका सम तो आ जाएगा 16x और इसका सम आ जाएगा 87। तो क्या पता चला हमें 17 मैचेस जब होंगे तो उनका सम रहेगा, एक तो 16 मैच का ये और 17th वाले का तो ये था ही। तो जो एवरेज थी, जो पहले x थी, वो बढ़ के क्या हो गई 3। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। नाउ वील सॉल्व इट एंड वील रिसीव आवर आंसर। 16x प्लस 87 इज इक्वल टू x। ये 17 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17x प्लस 51। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1x इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 36, और हमें अभी क्या बताना था, उसकी एवरेज बतानी थी 17th मैच के बाद, जो कि हमें पता है x थी पहले 16 मैच तक प्लस 3 हो गई। आंसर विल बी 39। तो 39 ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि रीना टुक अ लोन ऑफ 12,000 विद द सिंपल इंटरेस्ट 1200 सॉरी, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट उसने उतने ही टाइम के लिए लिया जितना उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लिया, और उसने जो इंटरेस्ट पे करा वो है 432। अब हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। हमें पता है t इज इक्वल टू आर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम इसको या तो t को r मान लो या r को t मान लो, तो हो जाएगा 1200 इंटू r अपॉन 100 इज इक्वल टू 432। तो जब हमने इसको 20 को 20 से काट दिया और यहाँ पे जो 12 था इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 216 और ये हो जाएगा
3 और ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अभी वो क्या पूछ रहे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी सॉल्व किया है, इट इज 6%। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज write the name of an angle formed when the clock time shows is 7:15. So 7 will come here and 15 will come here. So it is more than a right angle. So right angle can't be an option. और हमें पता है the angle which is more than 90 degree and less than 180 degree, क्योंकि ये वही बन रहा ना, 180 तो यहाँ तक बनता पर ये तो यहाँ तक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 13th क्वेश्चन है 15%, 15% ऑफ 40 is greater than 25% of a number by 2। अब समझो एक चीज को, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर मतलब ये बड़ा है इस नंबर से, कितने से, बाय 2। बड़ा हुआ तो मतलब इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो ही 2 आंसर आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6। फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, इधर 2, इधर 5, इधर आ जाएगा 3। नाउ दिस विल बिकम 3 into 2 will become 6 minus 1 by 4, x is equal to 2। Now what we'll do is minus 4 by x आ जाएगा इधर और इधर 2 जाके माइनस हो जाएगा, this will become 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4 into 4 is 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, हमें बताना है ये लेंथ कितनी है जिसका एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया गिवन है 700, लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेड्थ गिवन है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 एंड उसके बाद हमारे पास लेंथ आ जाएगी 140 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज 28, व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए। In the morning, the temperature was 10 degrees Celsius. It decreased by 3 degree in the evening. Decreased मतलब -3 हो गया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -13 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगली चीज हमें जो गिवन है वो है अ रेक्टेंगुलर गार्डन of 185 meter long is 185 meter, this is the length and this is the breadth. It has 2 roads in its center of the uniform width। देखो यहाँ पे एक ये हमारे पास गार्डन हो गया, यूनिफॉर्म विड्थ 4 मीटर्स की ये है सेंटर में और ये 4 मीटर्स की। अब हमें बताना है कि लेंथ में भी है पैरेलल और अदर जो पैरेलल है वो ब्रेड्थ पे है। हमें बताना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स 1.25 है पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 185 इंटू 4 हो जाएगा बिकॉज वो जो है रोड की लेंथ आ जाएगी, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 220 और क्या हो जाएगा इसके अंदर इंटू 4 अगेन, क्योंकि लेंथ की भी वही विड्थ गिवन है हमें जो रोड्स की है, इधर भी लेंथ में भी वही विड्थ है और जो ब्रेड्थ है उसमें भी रोड की विड्थ इतनी है, इसमें से माइनस कर देंगे वो एरिया जो दोनों तरफ आ रहा है, इधर भी 4 होगा इधर भी 4 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 130, इसको इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके इसमें माइनस करके 101604 आ जाएगा आंसर। दिस इज द एरिया और हमें क्या गिवन है, एरिया इंटू प्राइस कर देंगे तो हमें आ जाएगा जो भी हमारी टोटल कॉस्ट लगनी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया आ गया 1604 इंटू कॉस्ट 1.25, जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2005, which is option number D। The table below shows the maximum temperature of New Year last year. The average maximum temperature up to 2 decimal places हमें find करना है for May, July and September। तो आ जाएगा 21, 29 एंड 24। तो मैंने एवरेज का भी आपको फॉर्मूला बताया, क्या रहता है, सम अपॉन नंबर। तो नंबर कितना है 3, सम हम निकालेंगे 4174 और एवरेज कैसे आ जाएगा आंसर जब हम इसको डिवाइड करेंगे 74 को 3 से, 3 2 are 6, यहाँ आ जाएगा 14, 3 4 are 12, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 are 18 और उसके बाद फिर से 2, फिर अगेन 6 are 24.66 will be your answer।
अगला 17th क्वेश्चन है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, जो एक सेमी सर्कल पे फॉर्म होगा उसका जो भी हमारे पास आंसर आएगा इट ऑलवेज हैज टू बी 90 डिग्रीज, इट ऑलवेज हैज टू बी 90 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है अ बिग क्यूब हैज ईच पोर्शन ऑफ 44 सेंटीमीटर्स। नाउ वी नो कि हमारे पास कितने होते हैं इसके सर्फेसेस, अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं ऑलवेज होते हैं 6, और अगर हमें उसका एरिया फाइंड करना होता है तो वो होता है x, एरिया वॉल्यूम फाइंड करना होता है इट इज ऑलवेज x क्यूब, x मींस साइड का क्यूब। वो कह रहे हैं कि ये जो एक सरफेस है ना जिसका पूरा जो है पोर्शन वो 44 सेंटीमीटर्स का है, उस पर टाइनी क्यूब्स निकाल दो 4 सेंटीमीटर की, मतलब एक कितनी निकलेगी 11, क्योंकि 44 अगर पूरा उसका साइज है उसमें से 4 हमें सेंटीमीटर की निकालनी है, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास, 11 सेंटीमीटर नहीं 11 लेंथ आ जाएगी कि इतने हमारे पास देखो 44 सेंटीमीटर टोटल आपके पास एरिया है जिसमें से हमें 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं, कितने आ जाएंगे 11, 11 आगे। उसके बाद वो कह रहे हैं देन हाउ मेनी टाइनी क्यूब्स विल बी फॉर्म दैट आर सराउंडेड बाय एटलीस्ट वन क्यूब, मतलब एक उसके साइड पे क्यूब होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11 x माइनस 9, 9 आ जाएगा। अब 9 का हमें पता है हमने निकालना है यहाँ पे कि कितने क्यूब निकलेंगे, तो हमें पता है हमने क्या करना होता है x क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 विल बी 81 इंटू 9 इज 729, 729 इज योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, तो डेसीमीटर, डेसी इज ऑलवेज यूज्ड फॉर 1/10 ऑफ अ थिंग, ठीक है। 1 मीटर का आगे अगर हमें डेसीमीटर निकालना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 1 इंटू 10 माइनस 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई सिंबल रिपीटेड होता है इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स, इट इज कंप्लीटली फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 945.341। अभी हम क्या करते हैं वी नो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एडिशन होता है, एंड बॉड मास से इसको सॉल्व करना है तो हम पहले एडिशन वाले नोट कर लेंगे। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल बिकम 11801 हो गया यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा 0.1851.801। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1042 माइनस 792, 11 में से 2 गए 9 विल बी आवर आंसर, यहाँ पे ये आया था हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा 9 अगेन 0, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9 फिर 0 फिर 8, तो आंसर आ जाएगा 809.009, ऑप्शन नंबर क्या है डी। अगला है हमें क्वेश्चन गिवन, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका हमें लेंथ विड्थ एंड हाइट गिवन है, ये पानी से भर रखा है, इसकी वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज multiplication of its three sides 15 into 12 into 8, 15 into 12 180 180 into 8, this will result as 1440 centimeter cube is your answer which is option number D। Which option shows the fraction is arranged in ascending order? Ascending order कौन सा होता है जो जिसको हम क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीज शो कर रहा हो जो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम सारे के सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, 48 एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे सॉल्व करके कि यहाँ पे आ जाएगा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक होगा, बिकॉज जब हम 48 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 428, उसके बाद आ जाएगा 630, उसके बाद आ जाएगा 36 एंड उसके बाद आ जाएगा 339, तो ये एग्जैक्टली आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट टेक्स जूलिया हाफ आवर टू वॉश comb her hair, to wash comb her hair and put her clothes and 1/4 to have her breakfast, तो उसको कितनी देर लग रही है, तो वी नो हाफ आवर इज 30 मिनट्स, 1/4 इज obviously 15 minutes, this is 45 minutes, and if we have to tell the answer in hours then we know an hour is of 60 minutes, when solved this will become 3/4,
So 3/4 of an hour is your answer. We have to tell ये रोमन नंबर इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट है LC. L की वैल्यू क्या होती है 50, C की वैल्यू क्या होती है 100. When they are clubbed together they don't make anything. 27th सॉल्व करेंगे अब हम. 27th में a man on tour travels first 160 kilometers at 64 and another 160 at 80. तो we know speed is equal to distance upon time. तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या गिवन है डिस्टेंस और ये आ गया स्पीड, बिकॉज वी आर फाइंडिंग टाइम हियर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. ये क्या है हमारा आंसर किसका आएगा यहाँ पे टाइम का. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 2 and this will become 2.5. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो जाएगा 9.2 और 4.5 आवर्स. ये आ गया हमारा आंसर. अब हमें बताना है उसकी एवरेज कितनी रही होगी. तो एवरेज कैसे रही होगी, हमें अगेन हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है विच इज 320. टाइम हमने फाइंड कर लिया विच इज 9/2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1 किलोमीटर पर आवर विच इज ऑप्शन नंबर सी. अगला है 28th क्वेश्चन हमारे पास, जिसके अंदर हमें बताना है ऑन डिवाइडिंग 2272 एज वेल एज 875 बाय अ 3 डिजिट नंबर एन. एन को एक 3 डिजिट नंबर मान रहे हैं, सेम रिमाइंडर आता है. तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसमें से 875 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से आंसर आ जाएगा 1397. ये सबका क्या होगा डिवीजन के बाद आंसर सेम ही आएगा. अब हम देखेंगे ये तीनों डिवाइड किससे होते हैं. इसको डिवाइड करने के लिए जब हम चेक करेंगे और उसका जब हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 1 127 एंड 127. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 127 हमारा आंसर आ जाएगा. और जब हमने क्या करना है सम ऑफ इनका डिजिट्स, 1 + 2 is 3, 3 + 7 is 10. 10 is your answer. Question number 29 is the difference between two complementary angles is 10 डिग्री. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो सम जिनका मिलके क्या बनता है 90 डिग्री बनता है. अब वो कह रहे हैं 10 है उनका डिफरेंस, मतलब एक x होगा तो एक x + 10 होगा, है ना. एक एंगल अगर x है तो दूसरा x + 10 होगा, तभी उनके बीच में 10 का फर्क आ रहा है. तो यहाँ जाएगा 2x + 10 is equal to 90, 2x is equal to 80, x is equal to 40. If 1 is 40 तो अगला x + 10 will be 50. अब हमें वो वैल्यू बतानी है उनकी विच इज ऑप्शन नंबर बी. The total weight of brinjal plus ladyfinger plus onion is 48.057. And now what we are given with is if brinjal and ladyfinger, if brinjal plus ladyfinger, इन दोनों का हमें गिवन है. ब्रिंजल का है 5.35, ब्रिंजल का है 24.52. इनको हम ऐड कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 24.52 प्लस 5.35, 29.75. तो यहां से जब हम इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी जब भी हम 29 को इसमें से माइनस करेंगे. आंसर हमारे पास आ जाएगा 48.057. 00 यहाँ से आ जाएगा 3. दिस विल बिकम 18.187. दिस विल बी योर आंसर. तो ये है ऑप्शन नंबर 18. यस, दिस इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. How many faces are there in a cuboid? Now we know what is a cuboid. This is a cuboid. Face number 1, 2, 3. ठीक है, ये 3 तो दिख रहे हैं. इसके ऑपोजिट एक है, वो जाएंगे 4. इसके ऑपोजिट वाला 4, इसके ऑपोजिट वाला 5, इसके ऑपोजिट वाला 6. हो गए 6 फेसेस. आ गया आंसर. 32 का है अ फ्लैट सरफेस. एक हमें फ्लैट सरफेस गिवन है विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल द डायरेक्शंस. उसको बोलते हैं प्लेन. प्लेन जो चीज रहेगी. 33 का आंसर है हमारे पास. यहाँ पे वो कह रहे हैं द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड फॉर द लेंथ ऑफ O to P. सेक्शन चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और टोटल कितने होने चाहिए 9 10. टोटल 10 सेक्शंस हैं
ओ और पी किसको शो कर रहे हैं? 8 को। आंसर क्या आएगा? 4/5। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है इसमें से हमें। हम यहाँ पे जो जितने भी डिनोमिनेटर है ना उन सबका क्या करते हैं? एक एलसीएम ले लेते हैं। 5, 3, 6 एंड 2। क्या है? 5, 3, 6 एंड 2। सबका हमारे पास 30 एक एलसीएम हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 624। इधर आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा हमारे पास 1050, इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 75। स्मॉलेस्ट क्या है इसमें से? 24। तो 24 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। हमें सबसे छोटा बताना था। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन? होल नंबर जो होते हैं वो अंडर विच ऑपरेशन उनको हम क्लोज करते हैं? अंडर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे गिवन नहीं है बट अंडर एडिशन भी वो क्या रहते हैं? वो क्लोज रहते हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन में भी। द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, मतलब 1 मिलियन के बाद क्या आएगा? इफ 1 मिलियन इज दिस, तो ऑब्वियसली अगला सक्सेसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 15। तो लेट्स चेक। हमें स्मॉलेस्ट देखना है, तो स्मॉलेस्ट 60 है। 69 से डिवाइड नहीं होता, पर 12 और 15 से होता है। 90 जो है वो दोनों से डिवाइड होता है, ऑप्शन नंबर तीनों से डिवाइड होता है। एक सेकंड, 90 जो है देखेंगे तीनों से डिवाइड होता है, 60 तो नहीं होता था। 90 10 पे जाता है, इस पे जाता है वो 6 पे, इस पे नहीं जाता। फिर ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। अब 12 चेक करते हैं। 120 120 डिवाइडेड बाय 9 बिकम्स 3 एंड 40, तो ये आगे डिविजिबल है ही नहीं। तो 18 ही ऐसा एक चीज है जो सब पे जाता है। 39 का है, a certain brand of soap powder is sold at 15 per packet. Selling price per packet is 15. कॉस्ट प्राइस एक दर्जन की हमें गिवन है 144, और एक जो दर्जन होता है उसमें 12 चीजें होती हैं। मतलब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी एक पैकेट का आ गया, सेलिंग प्राइस भी एक पैकेट का आ गया। हमें बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन 8 डजन पैकेट्स। तो जितना प्रॉफिट इस सेलिंग प्राइस पे और इस कॉस्ट प्राइस पे एक चीज पे रहेगा, उतना ही 8 डजन पे रहेगा। हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? profit percentage is equal to selling price minus cost price will be 3 upon cost price into 100। तो आ जाएगा यहाँ पे 25 आपका आंसर, मतलब 25% is the profit percent। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। HCF और LCM का हमें गिवन है। द HCF ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस इज द LCM गिवन। तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम क्या यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको? 6 इंटू 8 6 4 इज इक्वल टू, हमें एक नंबर गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है ना। 96 गिवन है, अगला नंबर बी इट एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 16 को जब हम इससे फर्दर सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 4 3 2, यहाँ आ जाएगा 54 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। HCF of two numbers is 12 and that their difference is, देखो अब HCF है जो दो नंबर्स का वो 12 है, मतलब वो ऑब्वियसली जो दो नंबर्स हैं वो 12 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। इसको ये मान लेते हैं। इनका जो डिफरेंस है, एक नंबर ये था फिर एक नंबर ये था, अब वो कह रहे हैं इनका जो डिफरेंस है ना वो क्या है? वो भी 12 है। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1। मतलब अब हम जो यहाँ पे a लेंगे और यहाँ पे b लेंगे, अगर ये फॉर एग्जांपल मान लो a को हम 1 ले रहे हैं ना, b को हमें 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का फर्क कितना आया। इन दोनों का जो फर्क आया है वो आया है हमारे पास 1 का। अगर हम a को यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो हमें b को यहाँ पे 6 ही लेना पड़ेगा। फाइन, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? 12 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी हमें पता चल गया। पहले चेक करो ये 12 के मल्टीपल्स हैं, ये दोनों 12 के मल्टीपल्स हैं। ये 12 के टेबल पे किस पे जाता है? 7 पे, और ये जाता है 8 पे। यही हमारा राइट आंसर है। अगला 21 गोट्स जो हैं वो 15 काउस खाती हैं। 21 गोट्स जो हैं वो अगर 15 काउस को खा रही हैं, गोट्स अपॉन काउ कर देते हैं, तो हमें ये रेशो है। और उसके बाद अब हमें बताना है कितनी गोट्स खाएंगी 35 काउस को। अगर 21 जो हमारे पास गोट्स हैं वो 15 काउस खा रही हैं, तो कितनी ऐसी गोट्स होंगी जो 35 काउस को खाएंगी? तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 7, आ जाएगा 7।
क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? इस x का 7 यहाँ पे जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 into 7 is 49. ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है अ मैकेनिक अर्न्स 36,000 ऑन 9 कार्स। मतलब हम जब 36 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक कार की वैल्यू आ जाएगी जिसको वो रिपेयर कर रहा है, क्या आ जाएगा? 4,000। अब बताना है हाउ मच विल ही अर्न इन वन डे इफ ही रिसीव्स 27 कार्स। 4,000 अगर एक गाड़ी का है तो 27 गाड़ियों का कितना होगा? ये आ जाएगा 108,000 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अगर x अपॉन y की वैल्यू 3:5 है तो हमें इस गिवन की रेशियो निकालनी है। क्या है? 3, x की वैल्यू 3 है प्लस 4, y की वैल्यू 5 है, यहां से ले रहे हैं हम ये वैल्यूज, अपॉन 8, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। 3 into 3 is 9, 4 into 5 is 20, 8 into 3 is 24, 5 into 5 is 25. This will become 29 upon 49. This is option number C. Next question is, if 10 men can do a piece of work in 4 days, how many men will be required to do the same work in 5 days? देखिए, 10 men जो है वो 1/4 काम करते हैं एक दिन में, तभी जाके वो 4 दिनों में पूरा काम खत्म कर रहे हैं। तो एक मैन कितना करेगा? 1/40। ठीक है, 1/40 करेगा। तो उन्होंने कितने काम? 140 एक मैन एक दिन में काम कर रहा है, तो जब उसने 4 दिन में काम करा तो वो 10 काम खत्म कर देगा। तो जब अब हमें यही काम गिवन है 5 दिन के लिए, 5 डेज में हमें ये काम खत्म करना है, तो बताइए कि कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे। एज सिंपल एज दैट, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? 1 मैन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 10 मैन थे, विल डू इट वंस अगेन। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है हमें? 10 मैन जो हैं वो 1/4 काम करते हैं एक दिन में। तो एक मैन जो है वो 1 बाय इतना काम करेगा, मतलब 1/40 एक बंदा कर लेगा। अब हमारे को बताना है कि कितने बंदे चाहिए होंगे अगर ये काम 5 दिन में खत्म करना है। तो हमें पता चल जाएगा ये दिन अगर 5 दिन में खत्म करना है, 8 जाने जब लगेंगे, 40 आ गया ना हमारे पास टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड। 40 इज द टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड। 5 दिन है, कितने जाने चाहिए? 8 जाने। 8 जाने इज ऑप्शन नंबर बी। 47th क्वेश्चन है, इफ अ बॉय सेल्स अ बुक एट 450, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक ये है, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10%। मतलब जो ये वैल्यू टोटल हमारे पास 100% होता है, लॉस 10% हो गया, मतलब 90। अब हमें वो कह रहे हैं 90 की जो वैल्यू है वो है ये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, 100 की वैल्यू आ जाएगी 500। मतलब 500 क्या था? कॉस्ट प्राइस। वो कह रहे हैं अगर उसको 10% गेन करना होता तो वो सेलिंग प्राइस क्या रहता? कॉस्ट प्राइस ये है, 100 होता है पूरी परसेंटेज। अगर उसने इस पे 10% गेन करना है, 10 ऐड कर देंगे, 110। मतलब जो 500 वैल्यू है, अगर वो 100 की है तो 110 की वैल्यू क्या रहेगी? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 110 into 5 will be 550. Means option number C is your right answer. A man sells one speaker for 750. ये सेलिंग प्राइस है। जब उस पर प्रॉफिट था 20%, 100 पूरी वैल्यू होती है, 20% प्रॉफिट होगा, मतलब ये 120 की वैल्यू है। और जो अनदर स्पीकर है वो बेचता है वो इतने में। देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें? अ मैन सेल्स वन स्पीकर फॉर 7500 और इस पे उसका 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 120 की वैल्यू है। और जो दूसरा उसका अनदर स्पीकर, एक और स्पीकर है, वो उसने 8100 का बेचा एट अ लॉस ऑफ 10%। मतलब पूरा 100 होता है, लॉस हो रहा है 10% का, मतलब ये वैल्यू कितनी है? 90 की। अब हमें बताना उसका प्रॉफिट लॉस या टोटल प्रॉफिट हुआ कि टोटल लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 90। यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 90।
तो मतलब टोटल कितनी वैल्यू थी इस वाले स्पीकर की, इतनी वैल्यू थी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये हम इनकी कॉस्ट वैल्यूज निकाल रहे हैं। यहाँ आ जाएगा ये 4 पे, ये जाएगा 250 पे, ये जाएगा 125, 6250। अब देखिए यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस इसका, यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस इसका, हम इनको ऐड करेंगे, आ जाएगा 15250। अब हम इनकी सेलिंग को ऐड करेंगे 75 और 15600 इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, 350 रुपए का, मतलब डी इज योर राइट आंसर। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ 3, 18 m and 42 are in proportion, मतलब this is the proportion। अगर 3 से 18 कैसे बनेगा, 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही किस चीज को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आंसर है, m is equal to 42/6। आंसर क्या आएगा, 7 is your right answer, option number B। In an NCC camp 1200 trainees are participating out of 900। 1200 में से 900 क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड, ऑब्वियसली टोटल 1200 है, 900 सिलेक्ट हो गए तो 300 नहीं हुए। वो पूछ रहे हैं जो सिलेक्टेड है और नॉन सिलेक्टेड है इनकी रेशियो बता दो। एक जीरो से एक कटा, दूसरे जीरो से दूसरा कटा, 1 और 3:1 सिलेक्टेड टू नॉन सिलेक्टेड, क्या आ जाएगा 3:1, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।